फर्क पड़ता है वो तो। Evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Ma'am, Good good evening. evening. Ma'am, how do you do? Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? Ma'am, good evening. How are you? Ma'am, good evening. Ma'am, how do you do? Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. मैम आपकी आवाज Good evening, everybody. I am good, thank you. I was waiting for everyone to join the class. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. How do you do? I'm doing good. What did we do yesterday? Pronouns or something else? Ma'am, demonstrative pronoun. Very good. Yes, we did demonstrative pronouns yesterday. So what is a pronoun? Ma'am, good evening. Good evening. Raise your hand. Ma'am, how are What is a pronoun? I need a proper definition of a pronoun. I don't need a definition like he or she को pronoun बोलते हैं. I need a proper definition. Yes, Adarsh. Ma'am, pronoun is used at the place of noun. Very good. Yes, Trishi. Yes, ma'am. Ma'am, pronoun used on the place of the noun. And ma'am, pronouns. Ma'am, इनकी टाइप भी बतानी है? नहीं. हाँ जी गरिमा. मैम मैं आगे भी बता रही हूँ. हाँ बताओ. रुको एक मिनट. बताओ ट्विस्टी बताओ. मैम pronoun used to refer specific things or person. Yes, good. हाँ जी गरिमा आप बताओ. Ma'am, the pronoun is a word that takes place of noun such as I, she, they, him, her, it, etc. And ma'am, इसमें एक subject होता है, उसको हम कहते हैं doer the thing. And ma'am, जो object होता है, उसको हम कहते हैं receiver the thing. Good, very good. Okay. Who will tell me what are the types of pronoun? Ma'am, मैं बता. Ma'am, may I? जो बोलेगा उसको चांस Ma'am, नहीं मिलेगा. May I? I will only give chance to students who will only raise their hand like good students, not the ones who will speak. Yes, Riya. Pronoun is 6 types. Personal noun. Sorry. Personal pronoun. Relaxive pronoun. Indefinite
definite pronoun, demonstrative noun, interrogative pronoun, relative noun. Pronoun, sorry. प्रोनाउन है सारे, आपने सारे नाउन कह के गिना दिए, टाइप तो सही बताई। यस भावना, Nouns, personal may I? pronouns, the pronouns, person who will say may I will not be given a chance. Yes भावना, personal pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, and interrogative pronouns. very good. मैम मैं बताऊं? Ma'am, may I? May I? Ma'am, a pronoun is type of word that replace a noun. Reminder, a noun is a person, place or thing. ये आवाज कहाँ से आ रही है इतनी ज्यादा? Sharanpreet, Sharanpreet, put yourself on mute. A pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronouns are of 6 types. Yesterday we did demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are this, that, these, those. This or these is used for a thing which is near to us. That and those are used for a thing or things which are far away from us. This and that is used for a singular noun, and these and those are used for plural nouns. Yesterday you all were confused that why did I say that I is singular. We ended the class there. जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज थे कि मैम आई को सिंगुलर क्यों कह रही हैं। अभी डाउट है? Ma'am, no. मैम ये नहीं करवाया था आपने? आपने क्लियर अच्छा कर ठीक है दिया ठीक है था, ठीक है, ओके ओके ओके, डाउट क्लियर कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, वो 7th क्लास थी, सॉरी। हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किए थे। मैम यस मैम आप बोल रही थी कि डेमोन्स्ट्रेटिव मैं डेमोन्स्ट्रेटिव करानी है। मैम डेमोन्स्ट्रेटिव करवाई थी आपने। ठीक है, आज हम करवानी करेंगे, है अब। नहीं डेमोन्स्ट्रेटिव हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Pronouns. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मैम इनके पीछे मैम question इंटेरोगेटिव बोलोगे वाले तो वो मुझे होते नहीं हैं। समझ मैम आएगी। क्वेश्चन मैम इंटेरोगेटिव वाले होंगे जो क्वेश्चन वाले, मैम जैसे विच हु व्हाट वेयर। में बोलोगे तो क्लास जंगल बन जाएगी। Raise your hand and I will ask who wants to speak. And the second thing, please don't write anything on the board. Bhavna, don't write anything on the board. मैम वो गलती से हो गया, हम तो बस Friends, देख don't रहे write थे anything on the board. जूम कर। Charanpreet, don't write anything on the board. हाँ जी मैम अदर्स बोलो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिपीट कर सकते हो? हाँ कर सकती हूँ, कल आप क्लास में आए नहीं थे। मैम आए थे मैम, आपने तो बोला था कि मैं कल करवाऊंगी। मैंने कहा था कल करवाऊंगी मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने कल करवाए नहीं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैम आपने 2 ही करवाए थे। कल मैंने 2 ही प्रोनाउन कराए थे, कौन कौन से? मैम आपने 3 प्रोनाउंस करवाए थे, पर्सनल प्रोनाउन। नहीं एक मिनट बच्चे, कौन कह रहा है कि आपने 2 ही प्रोनाउन कराए थे? मेरे को बात करनी है। अगर आप कल क्लास में आए थे तब मैंने कल 3rd टाइप का प्रोनाउन कराया था। क्लास में मैंने ग्रुप ए में पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराया था, और कल मैंने ग्रुप बी के साथ आपकी क्लास ली थी तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कराया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो हेल्प करते हैं हमें किसी चीज को इशारा करके या डेमोन्स्ट्रेट करके बताने में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज।
ये 4 प्रोनाउन Ma'am, होते हैं, ये कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। हाँ जी, मैम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम पॉइंटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। हाँ बेटा कह सकते हैं। ओके मैम। Okay, so now we will start with interrogative pronouns. What is an interrogative pronoun? Anybody who would like to answer, raise your hand. और जंगल नहीं बनाएंगे क्लास को. Only the student whom I will ask will answer. Not everybody will say may I answer, may I answer. I know किसको आंसर आता है, किसको नहीं आता. और अगर कोई मेरे से बिना पूछे क्लास को डिस्टर्ब करेगा और बीच में बोलेगा, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी आज. ओके? यस मानविका. व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? मैम इंटेरोगेटिव वो होते हैं मैम जो क्वेश्चन वाले होते हैं मैम, जैसे विच, हु, व्हाट, वेयर. वेरी गुड. Who else wants to answer? Okay, Os, tell me the answer. Pronoun that ask question. Yes. Any pronoun that asks question is an interrogative pronoun. Like who, which, why, where, all these are interrogative pronouns. All of you make one example of an interrogative pronoun and write it in the chat box. I said make one sentence, not write the words. Make one sentence. मैम Yes. मैम यहाँ पे नेटवर्क इशू था, आपने जो पहले बोला आप रिपीट करोगे? आपने क्या लिखने के लिए बोला? अभी अभी आपकी आवाज आई. मैंने ये लिखने के लिए बोला है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन. तो आप लोग एक एक सेंटेंस बनाओगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करके. Everybody is making one mistake except for 1 or 2. हर्षित का सही है. अब ठीक लिखने लग गए सारे बच्चे. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जब भी लिखोगे, सेंटेंस बनाओगे, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा साथ में. मैम मेरा ठीक था. मैम गरिमा का सही है ना? मैम हर्षित का ठीक था. हाँ सबका मैम, ठीक है, बिल्कुल पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ. लेकिन Interrogative pronouns are pronoun that ask questions. What, where, etc. ये तो बहुत सिंपल प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. विच, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी चीजें क्वेश्चन आस्क करें, दैट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. मैम लक्ष्य का सही है. सबका सही है बच्चे. मैम करण शर्मा का ठीक है. जिसका गलत होगा मैं बता दूंगी. मैम. हाँ जी. मैम ट्विशी ना मुझे मैसेज कर रही है कि उससे ना गलती से क्लास लेफ्ट हो गई, उसे ज्वाइन कर लो प्लीज. ओके. यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं. Ma'am, 28. नहीं 28 वेटिंग में नहीं है, 4 है.
मैम आपने इससे पहले क्या करवाया है? मैम आप क्या करवा रहे थे? मेरी क्लास लीव। दोबारा करा दूंगी बेटा, 2 मिनट सबको ऐड कर दो जरा। मैं करा रही हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस आस्क करते हैं। कोई भी सेंटेंस जैसे हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर इज दिस प्लेस सिचुएटेड, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, वेयर इज माय बैग, जो भी मैम, वर्ड जो आपने- क्वेश्चंस या पूछें वो सारे इंटेरोगेटिव मैम? प्रोनाउंस होते हैं। मैम हाउ जो आर आपने यू, फर्स्ट वाले मैम जो आपने फर्स्ट वाले 2 सेंटेंस बोले मैम, वो मैंने चैट में लिखे हैं। मैंने पढ़ लिए सारे, सही लिखे हैं। अब हमने कितने कर लिए? 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर लिए। अब मुझे 5th टाइप बताओ आप लोग कौन सी होती है? मैम हाँ जी। मैम हमने तो 2 ही टाइप्स की है ना? हाँ बेटा, आपको मैं बाकी की Interrogative. करवाऊंगी आपको। ग्रुप मैम। बी ने सिर्फ 2 टाइप्स की हैं, बाकी की मैं करवाऊंगी। व्हाट इज द Ma'am, नेक्स्ट relative. टाइप? Ma'am, relative pronoun. Ma'am, relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? मैम some pronoun are used in special way. वेरी गुड। मैम कौन सा? Ma'am, they are used as relative pronoun. रिलेटिव Ma'am, प्रोनाउंस Ma'am, some pronouns are used in the special way is called relative pronouns such as who, whose, whom, which, that, what, etc. यस, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो सेंटेंस को कंबाइन करके डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि द रेड बैग इज रिलेटिव दैट आई वांट। देखो द रेड बैग, ठीक है, इज द वन दैट आई वांट। तो यहाँ पे दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। सीमा whose sister is my friend is coming मैम आपने to my home today। लिख दिया। क्या बेटा? मैम हाँ आप सही कर रही हूँ, सही कर रही हूँ बेटा, सही कर रही हूँ, सॉरी। सीमा whose sister is my friend is coming to my home today। The chocolates which are lying in the bag are to be distributed to the students। इसमें अब आप देखो हमने क्या यूज किया। द चॉकलेट्स विच आर लाइंग इन द बैग आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। जो चॉकलेट्स
रिलेट कर रही है ना, जो चॉकलेट्स वो बैग में हैं वो हम बच्चों में बांटेंगे। द रेड बैग इज द वन दैट आई वॉन्ट, वो लाल बैग जो मुझे चाहिए। सीमा हुज सिस्टर इज माई फ्रेंड, सीमा जिसकी बहन मेरी दोस्त है, जिसकी उसकी इसलिए उसलिए उसके आगे फ्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। अब वो चला गया बेटा नीचे, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है। मैम यस। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिनमें एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दैट, विच, हु, whom, whose। इसलिए, उसलिए, जिसके लिए, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ठीक है, जिसमें वो वजह बन जाए। जो वर्ड, जब ये वर्ड्स, अगर ये होगा दैट, हमने क्या बोला था, दैट, दिस, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, राइट। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। दैट पेन, अगर मैं सिर्फ दैट पेन बोलती हूँ तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि द पेन्स दैट आर विद मी राइट नाउ, तब वो क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। मैम मुझे रिलेटिव नाम समझ नहीं आया। हाँ मुझे पता है बच्चे, जितना शोर बंद हो गया ना सबका, किसी को भी समझ नहीं आया। हाँ जी आशिता बोलो। जी क्लोज का मतलब क्या होता है? बच्चे वो डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि एड, जिसकी वजह से, कि जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है इस चीज पर, इस वर्ड पर, इस प्रोनाउन पर, सेंटेंस डिपेंडेंट है। अगर मैं ये बोलूंगी द चॉकलेट्स आर इन द बैग, आप लोग ये सेंटेंस सुनो, देखो स्क्रीन पे और सुनो। द चॉकलेट्स आर इन द बैग, ठीक है, 1। द चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, बट अब मैंने क्या बोला? द चॉकलेट्स विच आर लाइंग इन द बैग आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर चॉकलेट्स हो गई, कोई भी चॉकलेट्स नहीं है, वो चॉकलेट्स जो बैग में हैं उनको बच्चों में बांट दिया जाए। तो क्या हो गया? डिपेंडेंसी क्लॉज भी आ गया और रिलेटिव भी हो गया, पर्टिकुलर हो गया, कि हमें समझ आ रही है किस चीज की बात की जा रही है। अगर मैं सिर्फ बोलूंगी दैट बैग, दैट पेन, तो वो पर्टिकुलर नहीं होगा, वो पेन, वो बैग। बट मैं बोल रही हूँ द रेड बैग इज द वन दैट आई वॉन्ट। अगर आप सेंटेंसेस एक बार रीड करो, उसके बाद आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करो, आप लोगों को समझ आएगा। मैम मैं दैट के बारे में एक चीज बताऊं। हाँ जी। Ma'am, that is used for things. Second point, that is used for persons after adjectives in the superlative degree. Third point, that is used after the interrogative pronouns who, which, and that. You are absolutely right, but if I will speak all these things right now, तो जिन बच्चों ने अभी स्कूल में प्रोनाउंस नहीं किए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मुझे धीरे धीरे ही कराना है। आपने जो बोला दैट इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। Okay, ma'am. मैम हाँ जी। मैम रिलेटिव प्रोनाउन वो हुआ ना, जैसे कि वो, वह, उसे, उसको, तुम्हें, है ना, ये है ना। तुम्हें तो नहीं आया बीच में, तुम्हें कैसे आ गया? मैम तुम्हें नहीं आएगा। तुम्हें किसकी हिंदी बना लिया आपने? गलती से बोल दिया होगा मैम, पर जो मैंने पहले बोले वो आएंगे ना। हाँ ओके आप मैम। लोग सब मैम म्यूट उनसे करके एक बार रीड करो। मैम मुझे ना समझ नहीं आया। क्या नाम है आपका? बेटा नाम बताओ अपना। मैम मुझे भी समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं दोबारा समझा रही हूँ।
आप मेरे सेंटेंसेस अब सुनना, ठीक है? दिस इज अ बॉय, ही हेल्प्स मी इन स्टडी। बच्चे यहाँ देखो सारे, अब मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। दिस इज अ बॉय, फुल स्टॉप, ही हेल्प्स मी इन स्टडी। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, ये सिंपल 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? ये 2 सेंटेंसेस सब पढ़ पा रहे हैं? Yes, ma'am. अब Yes, मुझे ma'am. अब मेरे को इसका 1 सेंटेंस Yes, बनाना है। ma'am. अब मुझे इसका 1 सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी? दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी। Study. ठीक है, अब यहाँ पे हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है। हु का मतलब है जो। ये है एक लड़का है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो उसकी हिंदी क्या है? यह लड़का है, ये मुझे पढ़ने में मदद करता है। अब मैं सेकंड सेंटेंस की इंग्लिश कह रही हूँ, ये लड़का है जो मुझे पढ़ाई में मदद करता है। हु क्या हो गया यहाँ पे? जो। इसी तरह से द स्टूडेंट हु वाज सिटिंग देयर इज माय ब्रदर। जो लड़का वहां बैठा हुआ था वो मेरा भाई है। हु किसके लिए यूज हुआ है? पर्सन के लिए यूज हुआ है। अब जो वो बता रही थी ना कि हु दैट पर्सन के लिए यूज होता है, हु किसके लिए यूज हुआ? पर्सन के लिए। पर्सन विच किस चीज के लिए यूज Excuse me, होता ma'am. है? यस, मैम जो आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी, मैम उसमें मी इन माय स्टडीज नहीं आएगा? नहीं, माई स्टडीज कुछ नहीं होता। मी एंड स्टडी का मतलब यही हो गया कि वो मुझे पढ़ने में हेल्प करता है। सेकंड चीज क्या है? हु कहाँ यूज होता है? पर्सन के साथ। अब मैं सेकंड सेंटेंस बोल रही हूँ, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। जो बुक टेबल पे रखी है वो मेरी है। विच किसके लिए यूज हुआ? थिंग के लिए। थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए भी विच यूज होता है। रिपीट करना बच्चे, हु किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। सेंटेंस। हाँ, Who सेंटेंस is लिख देती हूँ। person? रुको, मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा। यस गरिमा। मैम मुझे ना आपकी वॉइस लो आ रही है। मैम मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ, कर लो। मैम मैम हाँ एक जी। बार आप एक बार एग्जांपल बता दो, ओनली एग्जांपल्स बिना सेंटेंस के, जैसे हु, विच। मैम ओनली एग्जांपल्स लिख दो। मतलब ये लिख दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यस मैम, यस मैम। और कौन से होते हैं बताओ? मैम मैम दूज आ मैम दोज होज। मैम दोज होज। मैम दो। मैम दो व्हाट। What? मैम हुज। हाँ, लिख दिया बेटा। And Ma'am, what? मैम दोज दोज। मैम दोज। Those. 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 मैम होम। लिख दिया बच्चे, लिख दिया। इस तरह के सारे होते हैं, ठीक है? अब आप पहले, मैम दीस। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ना बच्चे, दोज और दीज वैसे जो होते हैं ना, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दोज और दीज नहीं आएगा इसमें। जब आप सेंटेंस पढ़ो, द स्टूडेंट हु वाज सिटिंग देयर इज माय ब्रदर। मैम देयर भी आएगा।
देयर क्यों आएगा? मैम इसमें हु आएगा जो आपने सेंटेंस बोला है। हाँ, इसमें हु आएगा। देखो पहला सेंटेंस है, मैंने क्या बताया था? दिस इज अ बॉय ही हेल्प्स मी इन स्टडी। दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी। तो हु किस लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। इसी तरह से विच किस लिए यूज होता है? कुंडिया लाला खुल जाना फिर। बच्चे देखो, हु यूज होता है पर्सन के लिए। ध्यान से सुनोगे, सिर्फ सुनोगे मुझे ध्यान से। हु यूज होता है पर्सन के लिए। विच यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि चेयर, टेबल। विच नॉन लिविंग थिंग्स, और एनिमल्स के लिए भी विच यूज होता है। whom किसके लिए यूज होता है? मैम which is used to non-living things, animals. हाँ, whom यूज होता है फॉर पीपल People. एंड बिग एनिमल्स। एनिमल्स की मैम एग्जांपल स्मॉल एनिमल्स एंड बिग एनिमल्स के लिए अलग अलग यूज होते हैं प्रोनाउंस। हो सकते हैं ना बच्चे? मैम बिग एनिमल, मैम बिग एनिमल में whale. कौन कौन से? अब द वेल उसके लिए, मतलब बच्चे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता रही हूँ इन जनरल जो चीजें यूज होती हैं। इसको ऐसे लिख दूं तो शायद आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। स्मॉल एनिमल्स, अभी ठीक है? Yes, Yes, whom is used to big animal, ma'am, and which is used to small animal. मैम मीनिंग whose भी पीपल के लिए यूज होता है। अब इसको सिर्फ ऐसे ही याद करो। मीनिंग हाँ बता रही हूँ, whom मीनिंग। मैम whom और whose दोनों पीपल के लिए। हाँ बच्चे, पीपल के लिए यूज होता है। हु देखो सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है। विच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। हु पीपल और एनिमल्स के लिए यूज होता है। हुज पीपल के लिए यूज होता है। मैम समटाइम्स होता है ना whose। हाँ, समटाइम्स थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए नहीं होता, एनिमल्स के लिए ही होता है। हुज थिंग्स आर दीज में या हुज एप्पल आर दीज में भी हुज का मतलब तो पीपल ही है ना बेटा। पीपल से ही पूछ रहे हैं कि किसके हैं। और दैट किसके लिए यूज होता है? मैम दैट इज थिंग्स। मैम खत्म होना लिया। मैम पर्सन के लिए भी यूज होता है मैम एडजेक्टिव के बाद जब सुपरलेटिव डिग्री लगी हो तो। बच्चे अपने आप को म्यूट करो सब लोग। मैम ये दैट दो बार। हाँ, दैट थिंग के लिए भी यूज होता है, दैट पर्सन के लिए भी यूज होता है। मैम दैट person की के लिए एग्जांपल भी ये आ use होता है। सकती है ना। मैम एंड व्हाट तो That is used to things. हाँ जी, मैम अब व्हाट इज यूज्ड आप टू। लोग एक काम करोगे, सारे वर्ड्स नोट कर लो। आप लोग सेंटेंसेस बनाओगे इन सब वर्ड्स के। हु, विच, whom, whose, दैट, इन सबके सेंटेंसेस बनाओगे आप। इनको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करके नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह अलग सेंटेंस बनाओगे, इंटेरोगेटिव की तरह बना के अलग बनाओगे। हाँ जी, मैम सभी के दो दो। सभी के 5-5। मैम ओके। मैम व्हाट रह गया। व्हाट तो बच्चे हर चीज के साथ यूज होगा। व्हाट इज योर नेम। अच्छा, मैम जो ये दैट हुज इनकी एग्जांपल है ये भी लिखनी है। यही तो यूज करने हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन में।
मैम क्या चीज लिखनी है आप दोबारा बता दो। बच्चे ये सारे वर्ड्स नोट करो, हु, विच, whom, whose, that, यूज, ये लो मैं इस पे लिख देती हूँ, ठीक है। मेक 5 sentences each using the above words. मैम हाँ जी, मैम सेंटेंस बनाकर कहीं सेंड भी करने हैं। बच्चे मैं गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगी आपको, आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आपको गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं ये वाले वर्ड्स यूज करके, इंटेरोगेटिव, और ये वाले वर्ड्स यूज करके 5 बनाने हैं रिलेटिव, हर वर्ड के 5। हु, मैम कल तक भी भेज सकते रिलेटिव, हैं। सुन लो बेटा, जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो सुन लो, जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो कैसे यूज होगा? सीमा's sister, सीमा whose sister is my friend, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। whose books are these, जब वो क्वेश्चन बन जाता है तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। आपने दोनों तरह से 5-5 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, ओके। मैम जो आपने मैम जैसे कि इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में मैम उसी शब्द के 5 रिलेटिव में और 5 इंटेरोगेटिव में बनाने हैं। हाँ, ओके इसमें वर्ड का नहीं लिखा। मैम हाँ जी, मैम कल तक भी सेंड कर सकते हैं। हाँ कल तक भी सेंड कर सकते हैं। मैंने नहीं लिखा उसकी एक रीजन है, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन में आ ही नहीं रहा। आप सेंटेंस बना के कोशिश करना समझने की, अगर आप सेंटेंस बना पाओगे बहुत अच्छी बात है, आप बना ही नहीं पाओगे जो चीज रिलेटिव में यूज नहीं होती उसका सेंटेंस। मैम बट कहाँ पर यूज होता है? इंटेरोगेटिव। मैम whom का मैम आपने ये मीनिंग, मैम आपको ये सेंड कहाँ पे करना है? बच्चे मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगी 1 घंटे बाद, आप उस गूगल फॉर्म में आंसर बनाओगे। ओके मैम इसके अंदर क्या होगा? जब मिलेगा तब आप देख लोगे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पढ़ लेना, आंसर दे देना। मैम मीनिंग, मैम मीनिंग, आप लोग इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हो, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही हूँ। मैम कितने बजे भेजोगे गूगल फॉर्म? 1 घंटे बाद भेजूंगी बेटा, 9:30 बजे भेजूंगी। आप लोग कल कर लेना आराम से, ठीक है। हाँ जी, मैम होम का इंटेरोगेटिव मैम गूगल फॉर्म की टाइम की whom did you talk Ma'am? to yesterday? Whom are you talking over the phone? इंटेरोगेटिव बन गया whom का। मैम होम का मीनिंग क्या है? मतलब मैम whom क्या? मीनिंग, मैम whom का मीनिंग, whom का मतलब किसके? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आप एग्जांपल्स दे दो। बच्चे, मैं एग्जांपल्स लिख दूंगी आपको, जो गूगल फॉर्म भेजूंगी उसमें मैं एग्जांपल्स लिख दूंगी, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं क्लास खत्म कर रही हूँ। हाँ जी, मैम हमें ये कब तक सबमिट करना होगा? कल भेज देना बेटा। ओके मैम। होम का मीनिंग होता है किसको, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। गूगल फॉर्म बाय मैम, गुड नाइट। टाइम बाय मैम गुड नाइट मैम। गूगल फॉर्म कितने टाइम तक बनता रहेगा?